వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ. బిగ్ డిబేట్ కార్యక్రమం టార్గెట్ టూరిజంకి స్వాగతం. రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడేటట్టు ఏదైతే ఉగ్రవాదులు దాడి జరిపారో పహల్గామ్లో టూరిస్టులు అమాయకులైన టూరిస్టుల మీద దాడి జరిపి 26 మంది అంటే ఇప్పుడు 66 మందికి సంబంధించిన మన పూర్తి వివరాలు ఇంకా రావాల్సి ఉన్నది. 26 మందికి సంబంధించిన మృత్యువాత పడ్డారు. అలాగే దాదాపుగా 20 మంది గాయపడ్డారు, తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారికి సంబంధించింది అసలు వాస్తవానికి ఈ దాడి వెనకాల కారణాలేంటి, ఎందుకు ఆ దాడి చేశారు, ఆ దాడి జరగడానికి ఎవరు వాళ్ళను ఉరేపించారు, అసలు వాస్తవానికి దాడి జరగడానికి కారణాలు, అలాగే దాడి జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఏదైతే ఉక్కిరిబిక్కిరిగా ఒక్కసారిగా మన టూరిజానికి సంబంధించిన 100 మంది ఉలిక్కిపడ్డ టూరిజం అక్కడ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారతదేశం ఈ దాడి వెనకాల కారణాలు వెతుక్కుంటూ ఒక ట్రీటీగా మనకు సంబంధించిన నీళ్ల ట్రీటీ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఆపేసింది. ఆర్టికల్ 62 ప్రకారం నీళ్లకు సంబంధించి ఏదైతే నీళ్ల వాటా ఉన్నదో దాన్ని తదంగా ఆపేసింది. అలాగే పాకిస్తానీలు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో, మన దేశంలో ఉంటున్నారో, విజాల మీద వచ్చి ఉన్నారో, తక్షణమే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాలని చెప్పినది. అలాగే హై కమిషన్లో ఎంతమంది ఉన్నారో దానికి ఆ ఏదైతే సంఖ్య ఉన్నదో ఆ సంఖ్యను పూర్తిగా తగ్గించాలని కూడా కోరడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరు దేశాల మధ్య ఒక్కసారిగా యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడ్డది. వాస్తవానికి చూసినట్టయితే ఒక పీస్ఫుల్గా పోతున్న సమయంలోనే ఒక్కసారి ప్రపంచం మాత్రం ఉలిక్కి పడ్డట్టుగా ఈ దాడి జరగడంతో అందరూ అవాక్కైపోయారు. టూరిజం ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటుంది. ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏదైతే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సమస్య, జమ్మూ కాశ్మీర్ లదాఖ్ వేరే వేరే ప్రాంతాలు చేసిన తర్వాత అక్కడైతే ఇప్పుడు శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుందో ఆ వాతావరణం శాంతియుతంగా వాతావరణం నెలకొంటున్న సమయంలోనే ఇలా ఒకసారిగా ఈ దాడి ఏదైతే జరిగిందో ఈ దాడి జరిగినతో మరొకసారి పాకిస్తాన్ ఇండియా మధ్య ఒక యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడ్డది. ఆ యుద్ధ వాతావరణంలోనే ఈరోజు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమమే టార్గెట్ టూరిజం. టార్గెట్ టూరిజంకి సంబంధించింది ఈరోజు మన ప్రేక్షకులకు ఒక విషయం మాత్రం నేను గమనించాలని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ మై డిబేట్ దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. They are senior most journalists and they are dignitaries from the Jammu and Kashmir area. That's why just I am requesting my viewers to please understand our situation and try. Just we are running our show in English and as well as Telugu, Hindi and Urdu. That's why just I am asking my viewers to please excuse us. At the same time just I am requesting my guest Mr. Harun Rushi, a senior journalist from the Srinagar, and as well as Mr. Saeed Muhammad Aslam, Jammu Kashmir Muslim Personal Law Board member, and as well as Mr. Rakesh Kumar, a social activist, and as well as just in nearby, I think that one of the spokesperson BJP, Mr. Sunil Shetty is going to be participate in our debate. At the moreover, Mr. Rahul Pandita also going to be participate in our debate, and one more person, RC Sharma, is a senior most journalist from the Jammu. He is also going to be joined. Right now, we have a very good panelist with me, dignitaries from the Jammu and Kashmir, and the moreover I have one of the dignitary from Four Sides TV who is my chief advisor, Mr. Dr. Sudhakar Sharma. Just I am welcoming to all my dignitaries to participate in my debate and make a success this debate. First of all, we want to start with Dr. Sudhakar Sharma ji. Sudhakar Sharma ji, actually जो हमारे पास जो हाल हुआ है, एकदम हमारे पास हिंदुस्तान में जो फिलवक्त चल रहा है, इंडिया में पीसफुल तौर पे जो चल रहा था वो माहौल एकदम से अचानक बिगड़ गया है. अचानक बिगड़ने का कारण क्या है? हकीकत में जो है ये हम उसको टेररिस्ट अटैक समझ सकते हैं या हमारी जो टूरिज़्म जो डेवलप हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, एकदम से बहुत बड़े पैमाने पे टूरिज़्म जा रही है. ये टूरिज़्म पर हमला करके वो लोग क्या साबित करना चाह रहे थे, इस बारे में आपकी क्या जानकारी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? Thank you, Jamil ji. Four Sides TV at the very outset pays its rich tributes to all those who have lost their lives in this gruesome encounter, terrorist encounter. Really with the heavy hearts we remember all those who have been separated from their loved families. India is really awestruck and it's deeply shocked at this incident because we have all been moving very smoothly. There was a kind of harmony everywhere, and suddenly the extremists have taken this opportunity to show their face once again. And at this critical and crucial moment,
I welcome all the dignitaries from Jammu and Kashmir. Dear friends, Foresights TV welcomes you all to join this show and express your viewpoints so that we all develop a kind of framework where we try to analyze and understand what has really gone behind and what is really beyond this type of attack, what it really intends to show to us, and which element has been perpetrating this kind of activities from behind. All these things, let us try to collect the viewpoints of our dignitaries as the show goes, and I request you to move ahead, sir. Yeah, thank you very much, Dr. Sudhakar Sharma ji. Just we can, first of all, we will move to Mr. Dr. Harun Rishi, a senior journalist from Jammu and Kashmir. Harun Rishi sir, first of all, आपको ये जो है सानहा जो हुआ है आज पहलगाम में, उसके लिए हम लोग हर एक यहाँ पर बहुत ही गमज़दा हैं, क्योंकि हमारे अपने जो भारतीय लोग हैं 26 आदमी तक अपनी जान से जहाँ उठे हैं, हम उनके लिए बहुत अपनी सिंपैथी पेश करते हैं। इसके अलावा एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप किस तरीके से इसको वहाँ की क्या हाल है और इसके पीछे, इस अटैक के पीछे कौन से पसपर्दा हरकत मुहर्रिकात हैं, आप कुछ बता सकते हैं क्या इस बारे में? देखिए, पहली बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसमें कम से कम 26 इंसानी जिंदगियों का इतलाफ हुआ है, और इस पे जिस कदर भी मातम किया जाए कम है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये जाहिर है कि एक दहशतगर्दाना हमला है, और इसका निशाना सिर्फ ये मासूम लोग नहीं थे, बल्कि इसका निशाना जम्मू कश्मीर में एक जो उम्मीद पैदा हो गई थी अमन और शांति की, उस पे निशाना था। और जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है जो अभी रिकवर हो रही थी, उस पे ये एक निशाना है। और सबसे ज़्यादा जो रेजिलियंस है इस कश्मीरियों की, तो उसको इससे धचका लगा है। तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, एक बहुत बड़ा वाक़या है, और इसका असर काफ़ी देर तक देखने को मिल सकता है। फिल वक्त हारून रशीद सर, अभी जो माहौल आप जैसा कि बताए हैं कि बिल्कुल एक पूरा अमन माहौल पैदा हो गया था कश्मीर में, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे थे। टूरिस्ट जाने पर एक अचानक ये हमला करने के पीछे कौन सी साजिश छुपी हुई है? क्या आप ये बता सकते हैं कि वाकईतन वहाँ पर जो टूरिस्ट हमला हुआ है एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, या जो है ना बस एक वहाँ का जो कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं वो लोग कुछ अपने तौर पर ये लोग इनिशिएट लेके करे हैं, या इसके पीछे जैसा कि जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा जो है इसके पीछे काम कर रही है बोल करके बता रहे हैं, वो किस हद तक सही हो सकता है? असलम साहब, आपका फोन कुछ थोड़ा सा म्यूट में रखें, बाहर बहुत आवाज़ें आ रही है। जी हारून रशीद सर, बताएं सर। देखें, जहाँ तक ये जो आप कह रहे हैं सोचा समझे, जाहिर है कि सोचा समझा ही था, वेल प्लान्ड था, इसीलिए तो हुआ। और जाहिर है कि जिन्होंने जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने ये किया, उनके जो हैंडलर्स हैं, उन्होंने ये वेल थॉट आउट प्लान था उनका, और ये एग्जीक्यूट किया उन्होंने, तो जिसके नतीजे में इतनी बड़ी पैमाने पे तबाही मच गई। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये सोचा समझा था। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है, हम पिछले 35 साल से इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं, और बदकिस्मती से हर वाक़या में इंसानी ज़िंदगियाँ चली गई और इंसानी ज़िंदगियों का इतलाफ हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा सदमे की बात यह है कि ये घूमने आए थे, ये सयाह थे, मासूम इंसान थे, और इनको हदफ बनाया गया। ये एक दर्दनाक चीज़ है, और उसकी दर्द की शिद्दत कश्मीर में महसूस की जा रही है। इस वक्त लोग इस पे मातमज़दा हैं, गमज़दा हैं, और पूरी वादी इस वाक़ये की वजह से सोगवार बनी हुई। राकेश कुमार जी, आपका क्या कहना होगा इस बारे में? जैसा हारून रशीद साहब ने फरमाए हैं कि फिल वक्त जो है कश्मीर में एक पुरअमन सा माहौल, साजगार माहौल बन गया था, काफ़ी अरसे से जो है ना वहाँ पर किसी किस्म की ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से एकदम हमला हुआ है, इससे जो है एक 26 जानें चली गई हैं और कई अफराद जो है ना ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है ना वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी, हालांकि जब हमारे टूरिस्ट प्लेसेस में जहाँ पर कश्मीर हो, जम्मू हो या लद्दाख हो, वहाँ पर मैक्सिमम अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस सिक्योरिटी जो है ना वहाँ पर वो लोग क्यों रेस्क्यू नहीं कर पाए? शर्मा, हमारे कुमार राजेश कुमार, जहाँ पे ये हुआ ना, अटैक हुआ, उधर जो में है ना पीछे आर्मी होती है, बिल्कुल आर्मी, साइड पे भी आर्मी होती है, पीछे भी आर्मी। जब पहली बार ऐसा अटैक हुआ
कि टूरिस्ट बेचारे बस्ती में घूम रहे थे। ये नहीं आज से, जितना 15-20 साल हो गए मस्ती में घूमते हैं, उनको इतनी खबर भी नहीं थी कि अटैक होगा। और अटैक भी वो ऐसा हुआ, आर्मी की वर्दी डाल के आए, ठीक है। उन्होंने टूरिस्ट आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे आर्मी वाले आते हैं जी, हाँ जी सर जी फोटो खिंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। जैसे वो पब्लिक के बीच में आए, अटैक हुआ। पर ये पहली बार मैंने देखा कि जो मिलिटेंट बच के चले गए, भागे, फायरिंग की उन्होंने, उन पे फायरिंग की, ऐसे ही चले गए। पहली बार मैंने ऐसा वो देखा। और हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है बहुत निंदा कर रहा है इस वक्त, इतनी निंदा कर रहा है। पहली बार मेरे को भी 22 साल हो गए अपना टूर एंड ट्रैवल का काम करते, 22 साल में पहली बार कश्मीरी जो हमारा भाईचारे वाले बाहर आए, रोडों पे निकल के आए और रोने लगे कि हमारा जो कश्मीर पे दाग लग गया। वो हमको खुद निंदा हुई, क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई भी इतने वो मेहमान थे हमारे, जो भी ये जो हुआ मेहमान थे हमारे, एक को मारा। पर इनका अब तक ये जो है ना पीछे बिल्कुल जंगल है जी। जब तक की स्कूटी नहीं ना सर, ये इनको पूरे प्लान से आए थे। जरूर कोई अपना आदमी होगा, कुछ भी होगा, अपना आदमी तो जरूर होगा, ये तो छोड़ो नहीं होगा, पूरे प्लान से आए। उनको कैसे पता चलना था कि हमला करेंगे, हम हमला करके ऐसे ही भाग जाएंगे। सो इसका मतलब है यहाँ पर जो लोकल जो लोग हैं वो लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं, जो आपका मानना ये है? जब तक घर का बेटी हो ना, घर का बेटी लंका डाले, ठीक है। अगर वो अनजान होते आते, ठीक है, मिलिटेंट में फायरिंग करते, भागते, पर भाग के कहाँ जाते वो? उनको पहले ही पता था हमने ऐसे फायरिंग करनी है, इस रास्ते से आना, इस रास्ते से भागना। ओके राइट। तो अब फिल वक्त जो है ना सिक्योरिटी पर्सनल्स का क्या कहना होगा वहाँ पर? जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो आजकल एकदम पूरी टूरिज्म का जो है ना जम्मू और कश्मीर पे जो इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से जो है सो सारी टूरिज्म पूरी इंडस्ट्री जो है ना एकदम से बिल्कुल गिर गई है उसकी। तो इस बारे में मतलब कि पहले फिर भी टूरिस्ट आता था, बेशक जम्मू की गाड़ियां जो भी है ना, जितनी टैक्सी गाड़ियां बिल्कुल बंद खड़ी है, बिल्कुल बंद जी, क्योंकि टूरिस्ट से तो हमारा काम था, टूरिस्ट ही नहीं रहेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? ओके राइट। इसीलिए हम एक सईद मोहम्मद असलम साहब के पास चलते हैं। सईद मोहम्मद असलम साहब, अब इसी तरीके से हमारे शर्मा कुमार जी ने, राकेश कुमार जी ने बताया, इसी तरीके से हमारे हारून ऋषि साहब ने फरमाया कि यहाँ पूरा जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट पे चलता है, टूरिज़्म से जो है सो यहाँ का माहौल बना हुआ है और एकदम से बिल्कुल पुरसकून तौर पर चल रहा था। लेकिन अचानक ये हमला होने की वजह से जो आमदनी थी टूरिस्ट के ज़रिए से, जो आने वाली आमदनी थी, बिल्कुल ठप होकर रह गई है। जितने भाई लोग हैं जो टैक्सी चला रहे हैं, टूरिस्ट के पेशे से वाबस्ता हैं, वो लोग बिल्कुल अपने हाथ पे हाथ धरे बैठ के रह गए हैं। और जो है ना जो आकर के हमला करे हैं, वो हमला जो अफराद करे थे, वो अफराद जो है वापस हमला करने के बाद कामयाबी से वापस चले गए। इसके पास क्या राज छुपा होगा? आप मुझसे पूछते हैं? जी हाँ साहब, असलम साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर। जी। पहले तो मैं ये अर्ज करूं, जी जनाब, इस वक्त सारी वादी जो है, यहाँ के सारे लोग इस वक्त इंतहाई तौर पर गमज़दा हैं और हर एक की आंख से आंसू निकल आते हैं और हर एक के दिल में एक बेचैनी और एक दर्द है। जहाँ तक सवाल है रोजगार का या टूरिज्म का या सयाहों के आने जाने का, पिछले 36 साल से हमने यहाँ ये बहुत कुछ देखा है। इसकी हैसियत सानवी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे घर में आके हमारे मेहमानों को मार दिया गया, हमारे भाइयों को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया। जब हम देखते हैं कि वो एक बच्ची जो अपने शौहर के साथ यहाँ आई थी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, सिर्फ चंद दिन उसकी शादी को हो गए थे और उसका शौहर उसके सामने 4-5 दिन के बाद ही उसको मार डाला गया। ये सानिया इतना अजीम है। और जो लोग मारे गए वो हमारे मेहमान थे। हमारे घर में आके दहशतगर्दों ने हमारे मेहमानों को मारा हमारे मेहमानों को, लेकिन हमला ये हम पर था, ये हमला हम पर था, कश्मीरियों पर था और इसका सदमा हम ही को सबसे ज्यादा है। जी। रहा सवाल टूरिज्म का, टूरिज्म फिर आएगा। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, अल्लाह सबको रोजी देगा। वो मसला छोटा मसला है। बड़ा मसला यह है कि ऐसी दहशतगर्दी का किसी को ख्याल तक नहीं था। पिछले 4-5 साल से यहाँ
बड़ी खुशहाली आई थी, लोगों के दिलों में एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि अमन आया है, लोग बेखौफ बेखतर यहाँ घर से निकलते हैं, अपने काज पर जाते हैं। हमारे पूरे भारत से हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे भाई हमारे पास साथ मिलने के लिए आते हैं, तो ये बड़ी खुशी होती थी। अब उस पर एक जो दबाव लग गया है, खौफ पैदा हो गया है, हम बदनाम भी हो गए इससे। हालांकि ये जो दहशतगर्द होता है ये वहशी दरिंदा होता है, इससे कोई तवक्का नहीं रखी जा सकती ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। इसका सिर्फ मोटो ये होता है कि जिस तरह कोई वहशी दरिंदा इंसान को चीर फाड़ करके फेंक देता है, दहशतगर्दों का काम ही ये है। वो मजहब नहीं देखता, वो बरादरी नहीं देखता, वो इंसानियत नहीं देखता। अगर वो मुसलमान होते, उनमें इंसानियत होती, वो ऐसा काम नहीं करते। राइट असलम साहब, और एक बात मैं आपसे दरख्त करना था कि इस ये जो ये हुआ है, ये दहशतगर्दाना हमला जो हुआ है, इसके पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमा है? आप अपन अब एक यकीन से कह सकते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इसमें बहुत ज़्यादा ही अमल दखल है। इसके अलावा भी अभी जो फिलवक्त जो बातचीत चल रही है बिल्कुल बंद हो गई है। यहाँ सर जो पाकिस्तानी थे उन लोगों को यहाँ देश छोड़ के चले जाने को कहा गया है। इसके अलावा भी जो पानी था हमारा, वो पानी के लिए भी जो सो ट्रीटी के तहत पानी भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलवक्त जो एक माहौल बना हुआ है कि एक ख़तरनाक किस्म की एक जंग का माहौल बना हुआ है, इस मामले में आप क्या फरमाते हैं? यहाँ मैं ये अर्ज करूंगा, पाकिस्तान की अपनी हालत इसमें बहुत ज्यादा कमजोर है। जी हाँ, और जिन्होंने यहाँ हमला किया वो वही लोग हैं जो यहाँ खुशहाली नहीं देखना चाहते, जो असल में हमारे दुश्मन हैं, कश्मीरों के दुश्मन हैं और पूरे भारत के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, हिंदू के दुश्मन हैं। जो मुल्क को खुश देखना नहीं चाहते वो लोग इसके पीछे हैं, जिनको यह खुशी नहीं हुई कि यहाँ लोग इज्जत और एक शान के साथ जीना चाहते हैं, अमन के साथ जीना चाहते हैं। और तकरीबन 30 साल के बाद 32 साल के बाद अमन कायम हुआ था। जिन लोगों को यह पसंद नहीं आया उन्होंने हमला कराया या हमला कर दिया। యా ఫోర్ సైజ్ టీవీ నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో మనం చూస్తున్నాము జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి అనేక మంది మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అలాగే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి హారూన్ రుషి గారు ఉన్నారు, అలాగే సయ్యద్ అస్లం గారు ఉన్నారు, అలాగే రాకేష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. మరి కొద్దిసేపట్లో మనకు సంబంధించిన బీజేపీ స్పోక్స్ పర్సన్ సునీల్ శెట్టి గారు కూడా మనతో మాట్లాడడానికి వస్తారు. అలాగే రాహుల్ పండిత గారు వస్తారు, అలాగే ఆర్సీ శర్మ గారు కూడా మనతో మాట్లాడడానికి వస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హిస్టరీ హైదరాబాద్లో జస్ట్ వీఆర్ ఓన్లీ ద ఫోర్ సైజ్ టీవీ కండక్టింగ్ ద లైవ్ డిబేట్ ఫ్రమ్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ బికాస్ the incident what's happened it there is completely it is an incident taken place by the support of the one of the enemy country from our side who is going to be stop for tourist I mean they want to put a stoppage to our tourist industry. That's why they has taken this one. So now right now just I want to talk to Mr. Harun Rishi साहब, फिल वक्त ये बताएं कि पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का मामला है, वहाँ पर जो है बलोचिस्तान को लेकर के, पश्तून इलाके को लेकर के मुकम्मल तौर पे ये लोग, उनकी इकॉनमी भी बैठ गई है, वो लोगों में सियासी तौर पर हलचल मची हुई है. एक तरफ इमरान खान की पार्टी, एक तरफ ना वो परेशान हाल है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एक तरफ है, दूसरी और कई तौर पे साजिशें वहाँ हो रही है. उस साजिशों को छुपाने के लिए सारी दुनिया की नज़र को कश्मीर पे लाते हुए इस मुद्दे को खड़ा करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत आज हमारे भाइयों पर हमला किया गया. इस बारे में आपका क्या कहना है? हारून सर, आपका फोन अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. हारून ऋषि सर. जी 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 फरमाइए सर. देखें, ये जो पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं तो उनके साथ क्या करना है इसका फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है और ले भी चुकी है. कई इकदाम कल से हम सुन रहे हैं गवर्नमेंट ने किए हैं और यही उम्मीद की जा सकती है कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा. और इससे पहले जिस तरह से होता रहा है पिछले 30-35 साल में, हर इस बड़े वाक़े के बाद कुछ दिन के लिए शोर वगैरह चलता रहता है, गवर्नमेंट भी बातें करती है, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, फिर डाई डाउन हो जाता है सारा. तो लेकिन आज का जो वाक़या है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. जैसा कि हम सबको पता है कि 26 इंसानी ज़िंदगियाँ इसमें ज़ाया हो गई और वो सारे के सारे टूरिस्ट थे, मासूम थे, उनका किसी चीज़ के साथ किसी कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी कंट्रोवर्सी के साथ. वो सिर्फ टूरिज़म पे आए थे यहाँ पे, इसलिए ये बहुत बड़ा वाक़या है. इसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी है. ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और ले भी रहे हैं. हम ये उम्मीद कर सकते हैं, करना चाहेंगे
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले जिसके नतीजे में एक परमानेंट और लास्टिंग पीस जो रेस्टोर हो इस तरीके। हाँ, फिल वक्त जो माहौल बना हुआ है वहाँ पर नौजवान तबका जो है ना वहाँ का कश्मीर का बार बार हर चंद साल के बाद। जी फरमाइए कुछ बता रहे थे आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम पिछले 30-35 साल से इस तरह की सूरत से जूझ रहे हैं और हर चंद साल के बाद इस तरह का कोई ना कोई बड़ा वाकया, कोई मैसेकर होता रहता है यहाँ पे, और इसकी वजह से जो उफ्ताद नाजिल होती है वो आम लोगों पे आ जाती है। कश्मीर के जो लोग हैं वो पिस जाते हैं इसके नतीजे में, जो रिपरकशंस इसके हैं वो। लेकिन राहतुल रशीद सर, अभी फिलवक्त एक ये भी बात सामने आ रही है कि लोग जो है ना इस पिछले सालों में, जैसे कि आपने फरमाया कि 30 से 35 साल पहले जो है ना पिछले 30 से 35 साल पहले ऐसे हालात थे, तो उसमें जो है ना कश्मीरियों को ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उकसाया जाता था, उनको जो है ना फंडिंग की जाती थी ताकि जो है ना वहाँ के हमारे सिपाहियों पर पथराव करे और उन लोगों के साथ जो है सो बुरा बर्ताव करे। लेकिन आज जो है सो माहौल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज फिर एक मरतबा नौजवानों को भड़काने के लिए ही ये साजिश रची गई है। बोले ये किस हद तक सही है? अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सही तौर पर रोज़गार मिलता तो शायद वो भी जो है ना इसी इकोनॉमी में, इसी इंडस्ट्री को डेवलप करते हुए वो अपने आप को मुनज़्ज़िम तौर पे वहाँ पे बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने यानी मतलब अपने जम्मू कश्मीर के लिए करते। फिर ये जो है ना एक किस्म की दहशतगर्दी की तरफ माहौल लौट रहा है, समझ सकते हैं कि हम। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ साहब, हारून सर, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, जैसे हम बोलिए। हाँ, देखें जिस तरह का रिएक्शन यहाँ अवामी सतह पर इस वाक़े के खिलाफ देखने को मिला है, जिस तरह से लोगों ने मुकम्मल हड़ताल की जम्मू कश्मीर में और एहतजाज किया, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर निकल आए, लोगों को रोते बलकते हुए देखा गया। उन्होंने सयाहों के साथ ये सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए सड़कों पर आकर नारे बुलंद किए। तो उससे साफ जाहिर है कि लोगों का एक कंप्लीट डिसअप्रूवल है इस हीनियस जो ये एक्ट है, जो हॉरिफाइंग एक्ट है, इसके खिलाफ लोगों का बिल्कुल कंप्लीट डिसअप्रूवल है। और वैसे भी पिछले चंद साल से कश्मीर में कंपैरेटिवली जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा था, लेकिन आज ये अचानक क्या हुआ, अब जाहिर है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और कुछ मज़ीद तफसीलात हमारे सामने आ जाए। ये बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला है और इसने हिला के झंझोड़ के रख दिया है कश्मीर को भी और कश्मीर के रहने वाली आबादी। राइट सरवंश, राकेश कुमार सर, अभी फिलवक्त ये बताएं कि हारून रशीद सर ने फरमाया है कि ये जिस तरीके का जमाल बना है, ये जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कश्मीरी अवाम के लिए ये नाकाबिल कबूल है, ये तो उन्होंने बता दिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि वहाँ का जो सियासी माहौल बना हुआ है, ये सियासी माहौल को डाइवर्ट करने के लिए जो है ना कोई लोग जो है अपने तौर पे कराए हैं बोल करके हम कुछ समझ सकते हैं क्या? जैसा कि आजकल सियासत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सिलसिले में जो चल रहा है, ये कोई ऐसी सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे कुछ? जो इनका सर सियासी मोल है ना, जो अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो मेन मुद्दा हमारे जो कश्मीर में दाग लगा हुआ है, ये पहला बार दाग लगा कश्मीर आज पहली बार होया रोड के ऊपर निकल के हमारे भाई बहन कश्मीर के लोग सभी बाहर रोए, और इतना रोए कि हमारी फैमिली पे अटैक हुआ, हमारी फैमिली पे। ये सियासत वाले कुछ नहीं है, सियासत वाले खाली रोटियां सेकेंगे, ठीक है। हमारे एमएलए भी गए, ठीक है, क्या किया उन्होंने बेचारे जो हमारे परिवार के आदमी, एक हमारे मेहमान थे, घूमने आए थे, ठीक है, घूमने आए, उन पे अटैक हुआ, ठीक है, अटैक हुआ, ऐसे इन्होंने अभी रोटियां सेकनी है, अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सियासत गर्म होगी, इसी बातों पे ना जाने वाली जाने चली गई, वो चली गई। अब ये सियासत करेंगे उस पे ही, ठीक है, उस पे सियासत करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, जो मिलिटेंट आए थे, ठीक है, 4 मिलिटेंट आए थे, अगर जहां उनको मारा, हमारे जो मेहमान थे उनको मारा, अगर हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी को भी चाहिए कि उनको जिंदा पकड़ के उनकी भी फैमिलियां लाके उनको ही मारना चाहिए, उधर ही उनको भी दर्द महसूस होए कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमारे देखो ना, छोटा सा बच्चा उस दादे के पास वो रो रहा है बेचारा, दादू वो चला गया बेचारा, कितना हमारा दिल इतना रोया पूछो मत।
ठीक है, पूरा कश्मीर रो रहा है, उसके बच्चे को देख के पूरा कश्मीर रोया। इतना मतलब कि पहली बार, मेरे को 22 साल हो गए, कश्मीरी पहली बार हमारा पूरा कश्मीर बाहर आया है कि हमारी फैमिली पे हमला हुआ। और एक सर, राकेश कुमार सर, मैं ये, हम थोड़े दिन से हम ये देखने आ रहा है कि जो बाहर थे पंडित, वो पंडितों को भी जो है ना कश्मीरी अवाम, श्रीनगर के लोग जो है ना, उन लोगों को बुला करके उनके जो इससे पहले यानी पेशतर हालात में जिस तरीके से कश्मीर के हालात थे वो साजगार होते आ रहे थे। पंडित भी जो है जो बाहर गए हुए थे वो लोग फिर श्रीनगर वापस आ रहे थे, वो लोग अपने अपने मुकामों पर बैठ कर अपने कारोबारों को चला रहे हैं। इसी दरमियान में बाहर के जो लोग आ रहे थे उनके खिलाफ थोड़ा सा वहाँ पर एक नासाजगार माहौल पैदा हो रहा था। अब वो जो है ना, वो माहौल भी अभी फिलवक्त जो बाहर के लोग, बिहार के, यूपी के, इधर बाहर के जो लोग आके काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी थोड़ी आवाजें उठ रही थी। अब फिलवक्त जो है वो भी दहशत में आ गई है। चलो ये तो बेचारे टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट अगर किसी ने लेबर पे हमला किया, लेबर रातों रात श्रीनगर से भाग जाएगी, रातों रात, क्योंकि वो जब एक बार दहशत पड़ती है, दहशत एक बार पहले हुआ था, ठीक है, 2-3 साल पहले उधर लेबर को मारा था, रातों रात लेबर सभी पूरा श्रीनगर खाली हो गया था। बिल्कुल, जब एक बार दहशत पड़ती है, दहशत में देखो आप टूरिस्ट है, टूरिस्ट अब इधर आ ही नहीं रहा। मेरे कम से कम भी 40 टूरिस्ट थे, उनको आना था, उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि जी हम नहीं आएंगे, हम कुल्लू मनाली जाएंगे। उन्होंने एडवांस भी डाला हुआ था, हमें पूरा टूर का प्लान बना हुआ था, होटल बुकिंग चुकिंग थे, सब उन्होंने कैंसिल करवा दिया। दहशत ही होता है। असलम साहब, आपका फिल वक्त जो माहौल बना हुआ है, एक हिंदुस्तान में साजगार माहौल बना हुआ है, और जो है ना एक मामलों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो जात पात की जो बिल्कुल हमारे पास जो फैली हुई थी, फैलाई जा रही थी, उसको एक पुरसुकून माहौल में जम्मू और कश्मीर में जो है ना, लद्दाख में एक किस्म का पुरसुकून माहौल हो गया था। लेकिन इस दहशतगर्द हमले के बाद जो है ना, फिर एक मरतबा ये जो है ना, ये जो मजहब के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोगों ने फिर अपना पंजा गाड़ा हुआ है। वो फिर एक मरतबा अपने आप से दोहराना शुरू कर दिए हैं कि भाई ये फला फला है, ऐसा है, ऐसा है। तो इस मामले में आपका क्या कहना होगा एज ए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर? आपकी बात सही है। आपने देखा होगा पिछले 36 साल में आज पहली दफा लोगों ने जो हड़ताल की, स्कूल के बच्चों ने हड़ताल की, हर शख्स ने जो जिस काम से वाबस्ता था, हर एक ने अपना कारोबार छोड़ के एहतजाज किया। और ये 36 साल में पहली दफा है कि इन्होंने किसी असली मुद्दा पर हड़ताल की है, असली मकसद पर हड़ताल की है, और पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि कश्मीरी कौम दहशतगर्दी के साथ नहीं है, कश्मीरी कौम हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं है। हम समझते हैं पहले तो जो हमारा मजहब है वो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल, सारी दुनिया के मखलूक जो हैं, सारी दुनिया के लोग जो हैं वो अल्लाह की मखलूक हैं, वो सारे अल्लाह के अयाल हैं। फिर उसके बाद ये हम 140 करोड़ लोगों के बीच में रहते हैं। हम 140 करोड़ लोगों के बीच में रहते हुए अमन और शांति का माहौल बना देखना चाहते हैं। आप जिन्होंने ये काम किया, हमने जहां पर ये वाक़ा हो गया है उस जगह का नाम है बाईसरन। ये बस्ती, ये पाकिस्तान पहलगाम बस्ती से तकरीबन 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर एक मैदान है, और पहाड़ी के पीछे बहुत घना जंगल है जहां से कोई बस्ती नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि इनको शटर दिया गया है, इनको खाना दिया गया है, वहां कोई बस्ती ही नहीं है। ये कहां से आ गए और कैसे इन्होंने किया, कैसे इन्होंने सोचा कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होगी और हम आराम से चले जाएंगे। ये सिक्योरिटी वालों को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी एजेंसी को देखना पड़ेगा, ये आए कैसे, कहां से आए और वापस कैसे चले गए। कश्मीरी कौम तो इस वक्त, ये आपने कल देखा होगा, वीडियो पर देखा होगा, आपने लोगों को देखा होगा, लोग खुद चाहते हैं कि इनको हमारे हवाले करो, हम खुद इनको फांसी देंगे। लिहाजा ये जो लोग इसको सियासत करना चाहते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम को गरमाना चाहते हैं, उनके अपने नापाक मकासद हैं। हम लोग ये नहीं चाहते, मुसलमान ये नहीं चाहते, हिंदू भाई भी नहीं चाहते हैं। इस वक्त एक सदमा है ये पूरे मुल्क पर, ये आफत आई है पूरे मुल्क पर। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान के बच्चे थे, हिंदुस्तान के लोग थे, पूरे मुल्क के लोग थे, उन्हें कत्ल किया गया। इसमें हम सब बराबर हैं, हम सब शरीक हैं इसमें। ये सारा दुख हम सब के लिए है। और अब हम यहाँ के लोग अब चाहते हैं, हम 36 साल से हर 2 साल 3 साल के बाद ऐसा वाक़ा देखते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि ऐसा हुकूमत ऐसे इक़दाम उठाए कि दोबारा ऐसे वाक़ात रोनमा ही ना होने पाए। राइट, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम के पास हाजिर होते हैं।
इसके लिए जनाब, इसके लिए कश्मीर पूरी कौम। हेलो या इसके छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आते हैं इसी मुद्दे को लेकर के, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस विल गो फॉर द स्मॉल ब्रेक, देन आफ्टर वी विल कम बैक अगेन टू यू। प्लीज स्टे ट्यून टू फोर साइड्स टीवी। ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్లలో వెంచర్లు, ధరణి పోర్టల్ని ఏమార్చిన వల్చర్లు, 1700 కోట్లకు గురిపెట్టిన భూ బకాసురులు, శిల్పా విజిలింగ్ గుడ్స్ ఫామ్ భాగోతం. వెంచర్ అక్రమమా సక్రమమా? జనం ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్లలో వెంచర్లు, ధరణి పోర్టల్ని ఏమార్చిన వల్చర్లు, 1700 కోట్లకు గురిపెట్టిన భూ ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్లలో వెంచర్లు, ధరణి పోర్టల్ని ఏమార్చిన వల్చర్లు, 1700 కోట్లకు గురిపెట్టిన భూ బకాసురులు, శిల్పా విజిలింగ్ గుడ్స్ ఫామ్ భాగోతం. వెంచర్ అక్రమమా సక్రమమా? జనంలో ఉంటాం, జనంలో ఉంటాం. బేకార్గాళ్ళ మోసాలు బయట పెడతాం. జర్నలిజానికి నిజమైన నిర్వచనం ఇస్తాం. డోంట్ మిస్ ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోరీ. ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్లలో వెంచర్లు, కుంభస్థలాన్ని బద్దల కొడతాం పదా. 30,000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ సేల్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. పంట పొలాల్లో రియల్ రాబందులు, అనధికార లేఅవుట్లలో ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయకూడదు అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాయి. 250 ఎకరాలు, 1000 కోట్ల టార్గెట్. 500 స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నా కూడా, లేకపోతే 8 యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా విధిగా రేరాలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో గరానా మోసం. ఇనాం భూములు, సిక్కం భూములు, ప్రభుత్వ భూములు, నదీ భూములు అన్నిటిని కూడా వెంచర్లుగా మారుస్తున్నారు. కస్టమర్లకు సన్ స్ట్రోక్ తప్పదా? సన్ రైజ్ ఇన్ఫ్రా మోసాలపై ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ స్పెషల్ రిపోర్ట్. ఫోన్లో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ. ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం ఎక్స్క్లూజివ్ డిబేట్ టార్గెట్ టూరిజం. తిరిగి స్వాగతం. ప్రస్తుతానికి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడుతున్నాము జమ్మూ కాశ్మీర్ వాసులైనటువంటి, జమ్మూ కాశ్మీర్లో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి హారూన్ రిషి గారితోని, అలాగే రాకేష్ కుమార్ గారితోని, అలాగే సయీద్ అస్లం గారితోని. ఈ విషయానికి మనం చూస్తున్నట్టయితే వాస్తవానికి అక్కడ జరిగిన ఏదైతే పరిణామాలు ఉన్నాయో చూస్తే మాత్రం పహల్గామ్ అనే ఏదైతే అక్కడ జరిగిందో, దాడి జరిగిందో, ఆ దాడికి జరిగిన ఏదైతే ప్లేస్ ఉన్నదో కేవలం 7 కిలోమీటర్స్ అప్పర్లో ఉన్నారని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఆ విషయంలో అక్కడి నుంచి ఏ ఊరు లేదు, ఏమీ లేదు. అయితే అక్కడికి ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే టెర్రరిస్టులు వచ్చారో వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వారు ఎక్కడి నుంచి అడవుల నుంచి ఎట్లా వచ్చారు, అడవుల నుంచి మళ్ళీ ఎలా పారిపోయారు, వచ్చినాక వారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున 26 మందిని చంపేశారు. మిగిలిన వారిని చాలాగా ఇంజూర్ చేశారు, సీరియస్ ఇంజూరీస్ కూడా అయినాయి. అయిన తర్వాత కూడా అప్పటిదాకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వరకు సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తున్నాయి? ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో జమ్మూ కాశ్మీర్ అనగానే మనం ఒక్కసారి చూస్తాము అది పూర్తిగా మిలిటరీ దిగ్బంధంలో ఉన్న ప్రాంతంగానే గుర్తిస్తాం. పర్టికులర్గా శ్రీనగర్ ప్రాంతంలో ఒక విషయానికి ప్రతి 6 మందికి ఒక మిలిటరీ అధికారి, మిలిటరీకి సంబంధించిన జవాన్ ఉంటారు. అది లెక్క. జమ్మూలో కొంచెం తగ్గినట్టు అయినప్పటికీ శ్రీనగర్లో మాత్రం, కాశ్మీర్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా 6 మందికి ఒక జవాన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటారు. ప్రతి చోట అక్కడ అడుగున సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, తనకు సంబంధించిన నిఘా వర్గాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిఘా వర్గాలు, సర్వీలెన్స్ ఉండగా కూడా ఉగ్రవాదులు, టెర్రరిస్టులు అనేబడే వాళ్ళు ఎట్లా రాగలిగారు? వచ్చేసినాక వీరు ఇంత
మారణ హోమం జరిపించిన తర్వాత కూడా చాకచక్యంగా వల తప్పించుకోగలిగారు. ఆ విషయంపై ఇంకా స్వస్థత రాలేదు. ఇప్పుడు వారు చనిపోయిన తర్వాత మనం గొగ్గోలు పెడుతున్నాం, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే చనిపోక ముందే మనం కనుక ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ కనుక తన పద్ధతిలో అక్కడ చేసి ఉంటే మాత్రం 26 ప్రాణాలు కదా, ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకపోయేది. అందులో 26 ప్రాణాలలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ టూరిజానికి సంబంధించిన ఒక షాహిద్ బిలాల్ అని ఎవరైతే ఉన్నారో షాహిద్ ఆదిల్ అని అతను కూడా ఆ ఉగ్రవాదులను ఏకంగా పోరాటం చేయడానికి అతనితోని వాళ్ళతోని కొట్లాడడానికి వాళ్ళ రైఫల్స్ కూడా కూర్చుకొని వాళ్ళ ఆర్మ్స్ కూర్చుకొని వారి మీదనే ఎక్కుపెట్టినట్టు కూడా మనకు తెలిసి వస్తుంది. ఆ నేపథ్యంలో అతను కూడా తన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగానే కేవలం మన దేశంలోనే కాక జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే కాక ప్రపంచవ్యాప్తంలోనే ఈ ఉగ్రవాద చర్యకు సంబంధించింది ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని నిరసిస్తూ బయటికి వస్తారు. అది హిందూ ముస్లిం సిక్ ఈసాయి అనే భేదం కులాల భేదాలు మతాల భేదాలు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఈ దాడిని ఖండిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మనం చూస్తే అసలు భారత ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టబోతున్నది, ఈ పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన ఏవైతే వచ్చినాక దాడి జరిపి నిర్భయంగా వాళ్ళు మరొకసారి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయంపై అసలు అక్కడి ప్రజలు ఏమంటున్నారనే దానిపై ఈరోజు మరొకసారి వారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. हारून रशीद सर, आपसे ये एक बात पूछनी थी कि ये लोग जो है, जैसा कि अपने शर्मा जी बताए और जो है ना असलम साहब बताए कि एक जो है ना बहुत ही अपर हिल इलाका है, वहाँ पर जो है एक सरफेस ग्राउंड पे ये लोग बैठे हुए थे और पूर्ण मुकम्मल तौर पे जंगल से घिरा हुआ ये इलाका है. इसमें वो लोग जो दहशतगर्द हैं वो लोग आए कैसा और इसमें वापस जाने में कामयाब भी कैसे हुए, और इसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज जो है उनका ये जो है ना इनकी इनएफिशिएंसी अपने को बिल्कुल सामने दिख रही है. तो इस मामले में जबकि जानते हैं कि जम्मू में थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है, लेकिन जब श्रीनगर कश्मीर की बात आती है तो यहाँ हर 6 आदमी के पीछे एक जवान बराबर होता है एक्ट पर कैलकुलेशन. तो आज जो है ना इतना बड़ा सान्या हो गया है, इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों का क्या कहना है? आज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसियों के इस पे सवाल पैदा हो गया है और बहुत सारे लोग इस वक्त इस पूछ रहे हैं कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है इसमें इन्वॉल्व, उसकी वजह से हुआ. और जाहिर है कि कुछ न कुछ तो भूल चूक हुई है उसी वजह से. अगर नहीं हुई होती तो इतना बड़ा सानिया नहीं हो सकता था. जाहिर है कि भूल चूक हुई है, लैप्स हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जिसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पर मैसेकर हुआ है. और वो भी पहलगाम जैसे एक सेंसिटिव इलाके में, जो उस रूट पर जहाँ से अमरनाथ यात्रा जो अभी शुरू होने वाली 3 जुलाई से, पिछले साल 5 लाख से ज़्यादा लोग आए थे यात्रा करने के लिए. जाहिर है कि इस साल भी उतनी ही तादाद में आ जाएंगे. इसलिए ज़रूरी है, ये उम्मीद की जा सकती है कि इतना सेंसिटिव एरिया, इसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, इसको सैनिटाइज किया जाना चाहिए था. क्यों नहीं हुआ क्या? लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों के जवाब जाहिर है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके नतीजे में शायद उम्मीद की जा सकती है हमें मिलेंगे. तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं भूल चूक सिक्योरिटी एजेंसियों से हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं. अब और एक चीज़ जो मानना है, अभी फिल वक्त जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं इस मामले में भारत सरकार ने यहाँ का पानी बंद किया है, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर जो पाकिस्तानी आवाम आई हुई थी, पाकिस्तानी टूरिस्ट आए हुए थे जो वीज़ा के ऊपर, उन लोगों को वापस भेज दिया गया है. इसके अलावा भी यहाँ पर जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में जो काम करते थे, एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट में, तो उसके लोगों की भी जो तादाद है उसको घटा करके बिल्कुल 50 कर दी गई है यहाँ से जाने के लिए. ये किस हद तक मुनासिब होगा? क्योंकि एक वो पाकिस्तान ने इस चीज़ से मना कर दिया है, वो अपने आप को बिल्कुल बज़ाहिर अलग कर लिया है. वो कह रहा है, वहाँ की जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बता दिया, और वहाँ की जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी बताए हैं कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई को हम मजम्मत करते हैं, हम इसमें किसी किस्म का हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है. वो तो हकीकत में इसके पीछे वो जो बोल रहे हैं और इसमें जो कारफरमा अभी जो काम हुआ है वहाँ पर, उसमें आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जो ये फैसले होते हैं ये टॉप मोस्ट लेवल पे हो जाते हैं. उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता है, उनके पास सारी सूरत हाल होती है. और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फैसले किए हैं, कुछ इकदाम किए हैं, तो ज़ाहिर है कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे. और आवाज़ ब्रेक हो गई आपकी. तो इस तरह के कई बार इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली, और हर बार
इस तरह के इकदाम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, और जाहिर है कि आज भी इस तरह के जो फैसले गवर्नमेंट ने लिए हैं तो ये कुछ सोच समझ कर ही लिए होंगे। ठीक है, ठीक है। इसी मामले में आरसी शर्मा जम्मू से जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो फोन पे ज्वाइन हो गए हैं। आरसी शर्मा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, जूम में आ गए हैं। शर्मा जी, शर्मा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने फ़ोन को। शर्मा जी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। जब तक आप सेट करते हैं, हम एक मरतबा हम हमारे राकेश कुमार जी के पास जाते हैं। राकेश कुमार जी, फिलवक्त जो माहौल बना हुआ है, इसके अलावा हमारी हुकूमत ने यह दावा, हमारी हुकूमत का ये मानना है कि फ़ौरन पानी बंद कर दिया जाए, यहाँ के जो वीज़ा के आए हुए हैं टूरिस्ट लोगों को फ़ौरन वापस भेज दिया जाए उनके घर पे, और दूसरी चीज़ जो है इनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया जाए, जो इससे पहले पुलवामा में जब अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसी को एक मरतबा फिर से दोहरा जाए, ताकि सही तौर पर सबक अपने पड़ोसी मुल्क को दिया जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? राकेश कुमार जी, आपका फोन अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मैंने बोला सर जी, इनको सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है जी, जरूरी दिमाग इनको जी। एक इनको आइटम बम पेश करने का मौका हमारी इंडियन आर्मी को जरूर चाहिए इनको देने का जी। ये वही मांग रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, और क्या कहना होगा आपका? क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी लैप्सेस बिल्कुल दिखा जा रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ही का कहना है कि वहाँ पर जो है ना इस कदर जंगल है जिसमें किसी भी बाहर के लोगों का दखल मुमकिन ही नहीं है। इस मामले में ना जहाँ पे जो चंद्रबास की यात्रा इधर से ही शुरू होती है। जी हाँ, यही तो हमारी कहना है कि आज जो है ना इस किस्म का हमला हुआ है, कल जब यात्रा शुरू होगी तो उस समय तो लाखों हजारों अवाम आएंगे, तब क्या होगा? मतलब ये है कि देखा मैंने आर्मी से मिलिटेंट भाग के पहली बार, और वो भी पूरे प्लान के साथ थे। ये नहीं है प्लान के साथ नहीं, जब उनको अगर अनजान होते ना, अगर वो आते उनको मारते भागते चले जाते, और उनको पता है हमने इस रास्ते से आना, इस रास्ते से मारना, इस दूसरे रास्ते से भागना, राइट। उसके उन्हें अभी शो नहीं। अब हम आरसी शर्मा के पास चलते हैं। आरके शर्मा जी, पहली बात तो जो है आपके जो पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा बात करने के लिए मना कीजिएगा, और फिल वक्त जो हालात बने हुए हैं, अभी थोड़े दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा हमारे देश के लिए इतनी अहम है कि हमारे देश के हर कोने से वहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ है, ये सानेहा जो हुआ है, इसकी वजह से हर एक के दिलों में खौफ और डर का माहौल पैदा हुआ है। इस वजह से अमरनाथ यात्रा में भी मैक्सिमम असर पड़ने का अंदेशा है। इस सिलसिले में एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं शर्मा जी? बिल्कुल जो अच्छा हुआ है 2 दिन पहले, और अमरनाथ यात्रा पे असर पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन सवाल असर का नहीं है। सवाल ये है कि उन लोगों की हिम्मत देखिए कि वो लोग कहां से आके कहां कर रहे। ये लोग असर डालने के लिए नहीं, ये लोग दहशत डालने के लिए जी। और ये कहना, ये मैं नहीं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा कि सभी जो लोग हैं कश्मीर के वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन उन्हीं की है जिनके हाथ में बंदूक, उन्हीं की बात मानी जा रही है, जो वो कर रहे हैं वही हो, और जो बाकी लोग हैं उनका बात नहीं मानी जा रही। दूसरी बात ये है कि इन लोगों के लिए हम लोगों ने, जो हमारी इस वक्त जो सरकार है, जो भी है, उसको सर्जिकल स्ट्राइक तो करनी है। जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं जम्मू JNK में या कहीं, उनको तो बस करना बहुत दूर, उनको बलडोज करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको यहाँ से निकालना बेहतर होगा। अदरवाइज ये हाथ से रुकने वाले, अभी तक कोई भी परिवार सामने नहीं आया कि ये 4 लोग हमारे घर में रुके। अभी किसी व्यक्ति ने नहीं कहा जबरदस्ती, इसका मतलब किसी न किसी ने उनको अपने घर में रोका है, कहीं न कहीं ने उनको अपने घर में शर्म दी, और जो शर्म दे रहा है वो भी उतना ही
क्रिमिनल है जितने ये, और मेरा ये है कि ये ऐसे लोगों की चेन बनाई जाए और ये सभी पकड़े जाए, और इन पकड़ने के बाद इनके ऊपर केस नहीं चलाया जाए, इनके ऊपर वैसे ही किया जाए जिन्होंने किया, जैसे इन्होंने किया। और बाकी रही सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक तो अब तो उसकी तो कहने की बात ही नहीं कि जरूरी है या नहीं जरूरी, वो तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें जो जड़ है वो पाकिस्तान की आर्मी। हमें पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़नी है। हिंदुस्तान में ये दहशतगर्दी को कम करना है या खत्म करना है। जब तक पाकिस्तान की आर्मी है तब तक ये हिंदुस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। हम 100 मार लेंगे, 200 मार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और भेज देते। तो इसलिए मेरा ये है कि सरकार को पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कुछ करना चाहिए, उनकी कमर तोड़नी चाहिए, और उनके वहाँ के अफसरों की, उनकी वो वहाँ पे बैठे हुए यहीं से कुछ भेजने चाहिए, यहाँ की हत्या हो वहीं वो मारे जाए। जो सोच रहा है, जो प्लान बना रहा है वही मारा। इसलिए ये हमारे जो मुख्य कारण हुआ है वो पाकिस्तान की आर्मी। एक बार फिर हम सईद असलम साहब के पास चलते हैं। अभी सईद असलम साहब अभी इस तरीके से आरसी शर्मा जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जम्मू के, उनका मानना है कि वहाँ पर जो दहशतगर्द आए हैं उनको जो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की, हमने अपने पड़ोस के मुल्क की जो आर्मी है वो सपोर्ट कर रही है, उकसा रही है, उसी वजह से यहाँ दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं और उनकी कमर तोड़ना ज़रूरी है, उनका मानना है। इसके अलावा भी उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने वहाँ पर बगैर किसी सपोर्ट के, वो लोगों को ये नामुमकिन था, वो आ नहीं सकते, हमला भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका मानना ये है कि वो लोग कहीं से सपोर्ट हासिल करके आए हैं या पर इंडिपेंडेंट आकर के यहाँ पर जो है हमला करके वापस चले गए हैं? आपका क्या मानना है? इसके अलावा भी शर्मा साहब का ये कहना है, आरसी शर्मा जी का, जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो अफराद इसमें मुलविस पाए गए हैं उनको ला करके उसी मुकाम पर उनको कत्ल किया जाए। किस हद तक सही होगा? जहां तक एक सवाल उन्होंने किया, जहां ये सवाल पैदा होता है कि क्या सिक्योरिटी का कोई मसला था कि वहां उन्होंने कोई गफलत बरती इस मामले में, मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है। जी हाँ, हेलो, यस सर, यस ये सर। पहाड़ी इलाका है और इसमें बहुत ज्यादा जंगलात हैं। इतनी फौज नहीं लाई जा सकती कि जंगल में हर पेड़ के पीछे एक सिपाही को खड़ा करें। वो अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं, अच्छा करते हैं। अलबत्ता चोर को घुसने के लिए थोड़ी सी चूक की भी जरूरत होती है कि कहीं थोड़ी चूक हो हम अंदर घुस जाएं। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि ये जो बैसरन का इलाका है वहाँ कोई लोकल बस्ती नहीं है। जी हाँ, वो बस्ती से 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ जो मुसलमान एक जो घोड़े वाला था सईद आदिल शाह, वो बेचारा भी वहाँ मारा गया दूसरे लोगों को बचाते बचाते। उसने भी गोली खाई, गोली खाने के बाद भी वो दूसरे लोगों को बचा रहा था, वो बेचारा उधर मर गया। यहाँ मसला ये है कि ऐसे इकदाम तो जरूरी हैं। हम पिछले 36 साल से ये झेल रहे हैं, अब कब तक झेलते रहेंगे? ये कश्मीर में ये मसला तब से है जो 90 में जो पैदा हो गया था, वो आज बूढ़ा आदमी है, उसने पूरी जिंदगी यही हाल देखा है। अब हम लोग चाहते हैं, पूरा इंडिया भी चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है, हम कश्मीरी चाहते हैं कि इसका अब आखिरकार इसका खात्मा हो और हमारी हुकूमत को, हमारे वजीर आज़म को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे ये मामले हर हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और हम फिर अमन और चैन के साथ पूरा मुल्क रह सके। ठीक है, एक मरतबा फिर हम हारून रशीद सर के पास जाते हैं। हारून रशीद सर, फिर कंक्लूड में आप एक बात बताएं कि आज जो है जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वहाँ पर ख़ास तौर पे एक मज़हब के मानने वालों को निशाना बनाया गया है बोल करके यहाँ पर जो अफवाह फैली हुई है, इस किस हद तक ये सही होगा? क्योंकि जैसा हमने ये देखा है कि एक आदिल शाह नामी लड़के ने उन लोगों के, उस दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा भी अब फिल वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें यह कहना है कि वहाँ पर ख़ास तौर पे एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, वो किस हद तक सही है? हारून रशीद सर। देखिए, जाहिर है जो दुश्मन है वो यही चाहता है कि ये डिवाइड हों और ये एक दूसरे पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाते रहें और ये एक दूसरे के साथ इसी तरह लड़ते रहें और डिवाइड होते रहें। असल चीज़ ये हिंदू मुस्लिम का है नहीं, ये दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। आपने खुद आदिल के बारे में बताया,
आदिल ने जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अपनी तरफ से जो कोशिश की और उस कोशिश में वो मारा गया, तो उसको देखकर ही आपको लगना चाहिए। और ये जो कल से यहाँ पे वादी में जो एहतजाज हो रहा है, जो लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, बलक रहे हैं, सोगवार बनी हुई है पूरी वादी, तो इसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये वो मसला नहीं है जिसकी तरफ कुछ लोग इशारा दे रहे हैं, जो इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक दहशतगर्दी का वाकया है, इसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक। राइट, ओके, एक बार तो अब फिर हम राकेश कुमार जी के पास जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे हारून ऋषि ने कहा है कि ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, इसके बारे में आपका क्या कहना है राकेश कुमार जी? हाँ जी, इनका तो मजहब है ही नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं होता है। इनका काम है कि इनको जो मेरे कहना शायद इनको अच्छा लगे नहीं लगे, ठीक है, इनको जब बताया जाता है ना, जब इनकी क्लास ली जाती है, इनकी जब शामिल होते हैं अपनी क्लास में, ये कहती है, इनको यही बोला जाता है तुमको जन्नत मिलेगी जी, 4 आदमी मारे जन्नत मिलेगा, ये होगा वो होगा। कहने का मतलब ये है कि इतनी दहशत फैला दी उन्होंने टूरिज्म में कि आप पूछो मत। टूरिस्ट इस वक्त इतना डरा हुआ है, टूरिस्ट कटरा को भी जाने के लिए डर रहा है। टूरिस्ट अब कटरा को भी जाने के लिए डर रहा है। अभी हमारा स्टेशन देखो बिल्कुल खाली है, टैक्सियां खाली हैं, ठीक है, उन्होंने इतनी दहशत फैला दी। आगे अमरनाथ की यात्रा आएगी, अमरनाथ की यात्रा आएगी, जबकि 2-3 अटैक हो गए। अभी एक अटैक उदयपुर में भी हो रहा है, अभी एनकाउंटर चल रहा है। ओके, शर्मा जी आपका क्या कहना होगा इस मामले में? आरसी शर्मा जी। जी देखिए, ये जो किलिंग हुई है, ये मैं असमंजस में हूं कि नाम पूछ के हुई। अब मजहब से तो जोड़ा गया है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मजहब से नहीं जोड़ा गया, मजहब से जोड़ा गया है। और जो दूसरा वो बचाते हुए जो शहीद हुआ है, उसको इसलिए मारा गया है कि वो उनको बचा रहा था, इसलिए नहीं मारा गया कि वो उस मजहब। ये बात समझने की बड़ी गहराई से इसको समझना। तो बाकी रही बात, मैं कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान वैसे नहीं है, लेकिन उन मुसलमानों की चलती नहीं, चलती उन्हीं की है जो कर 47 में हम पर आगे चली उन्हीं की, जो हमें बचा रहे थे उनकी चली। वो 89 में उन्हीं मुसलमानों की कश्मीर बनवारा चलती उन्हीं मुसलमानों की है, वही चला, बाकी खामोश बात तो माननी पड़ेगी ना। अगर बाकी चलती मेजोरिटी की तो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के नहीं आते। लेकिन आजकल तो कश्मीर पंडित वापिस आ गए हैं ना श्रीनगर में। कोई नहीं गया, अभी कहाँ गए? अभी तो बहुत सारे कश्मीर पंडित आ रहे हैं, हमें भी तला है और राहुल पंडिता से भी बात हुई थी। राहुल पंडिता भी यही कह रहे हैं कि अभी माहौल साजगार हो रहा है, काफी लोग कश्मीर से श्रीनगर वापस आ रहे हैं। देखिए, कश्मीरी पंडित वो गया है जिसको वहां नौकरी थी, और वो भी स्ट्राइक पे बैठा हुआ है जम्मू में, वहां नौकरी नहीं चल। ओके, ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। हम एक मरतबा आखिर तौर पर एक मरतबा सईद असलम साहब से पूछते हैं कि सईद असलम साहब, अभी जिस तरीके से शर्मा जी बता रहे हैं, राकेश कुमार जी बता रहे हैं कि मजहब का नाम पूछ करके मारा गया है, किस हद तक सही है? इसमें आदिल भी जो है ना शहीद हो गया है, लेकिन यहाँ पर मजहब पूछ के मारने की क्या ज़रूरत थी वो लोगों को? जी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने ज़रूर मजहब पूछा होगा। इसलिए पूछा होगा कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो ये पूरे देश के लोग जो हैं आपस में ये लड़ पड़ेंगे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है उनका मकसद भी यही हो, उनका अटैक का मकसद भी यही हो कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम का फसाद कायम हो। इसलिए उन्होंने जानबूझकर नाम पूछा होगा, ताकि जब हम यहाँ से निकलेंगे, और उन्होंने किसी लेडी के साथ हमारे वजीर आजम के लिए पैगाम रखा था कि उनको बता देना। उसका हो सकता है उन दहशतगर्दों का मकसद ही यही हो कि हम जब चले जाएंगे तो ये भाई आपस में लड़ पड़ेंगे और मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। राइट, एट द एंड ऑफ द डिबेट, हारून ऋषि सर, कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द कंक्लूडेड पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर साइड? What is the message from the Jammu Kashmir you are going to give the people of India? The message is loud and clear. People want peace and harmony and brotherhood.
and they are striving for a permanent and lasting peace and stability in Jammu and Kashmir. Yeah. And that is why they are on roads. They are protesting against the heinous terror attack, against this horrifying act. They have shown their disapproval, complete disapproval to this heinous crime. Yeah. At the same time, do you support the surgical strike on the Pakistan? Who am I to support or oppose it? It has to. The government of India has to take the call. At the same time, what is your conclusion point about that they have discrimination between the Muslims and community Hindus, and they are identifying the Muslim Hindus, and then afterwards they open the fire on those people who belongs to some other community? Of course, there are some people, some miscreants out there who want to divide the society on the name of religion, who want Muslims to fight with Hindus and Hindus to fight with Muslims. But I am sure that they will not succeed, because people are well aware, people are educated, people know that terrorism has no religion. It should not be linked with any religion. Yeah, anyhow, thank you very much, Harun Rishiji, and moreover, Mr. Saeed Aslam also, and R.C. Sharma. We are thankful to you to joining with us in our debate. At the same time, just we are giving a very heartfelt congratulations and thank you, Mr. Rakesh Kumar ji, for participating in my debate, particularly about this issue, and just raising some of the issues which is the most important to us to know that what's happened there in Jammu and Kashmir, and what action we have to take against this terror attack which is supported by the Pakistan. So that's why just we are saying very thankful to those people who have participated in my debate. At the same time, just I am asking Mr. Dr. Sudhakar Sharma ji to conclude my debate. Thank you, Jamilji. Today we had a very good discussion where we came to understand that the issue is really multi-layered, because it appears something over the surface, but what is really hidden behind it has been really expositioned by our dignitaries, and they clearly show that the very cause of this is beyond any religion, because there we have lost one of the persons coming from the Muslim community, Adil, really fighting for the tourists. So we cannot say that this issue is linked with any religion, but the terrorists on their own part have got a kind of hidden agenda wherein they want to divide people basing on the religion. So it has been done repeatedly with many tourists only to establish the fact that the persons are doing this only on the act of a particular faith of a particular religion. So this is also a part of their agenda, I firmly believe, and come to conclusion that the learned dignitaries have shown very clearly that the area is really coming back to a kind of peace, and it is really coming to a kind of era of prosperity wherein all the sections of the people want to work together harmoniously, and really they were enjoying the fruits of their effort. But unfortunately, the kind of extremists, they stepped into this, only they could not digest that Kashmir could become an integral part of India and really becoming a kind of larger democratic sovereign. So they could not really bear this, and they were trying to make some kind of incursion, and they want to really break down the peace and the kind of good prosperity which is developing over that particular place. The dignitaries have shown beyond any doubt that everyone is together, because we have seen that the entire Kashmir is mourning, bereft. People from all sections of the society, people from all faiths are really mourning together. And this is for the first time in the history of this Kashmir that people from all sections have come together as one family to really show their anger, wrath and kind of dissentment against the kind of extremist activity that has really costed 28 lives according to the latest report. So this is the hour where everyone must sit and they should come together. Religion should not be taken as a kind of instrument to cut people apart. It should really make people come together. And at this grave and really a kind of disturbing hour, let us put forth all our energies to really make Kashmir very safe place, more secure place. We should really increase our defense outposts, and we should also place security personnel in such a way that such incursions will never happen again, will never repeat again in future. Yeah. So with that kind of thing, let us come to a conclusion that religion has no part to play with terrorism.
and taking that into consideration, let us all come together and make our valiant efforts to save such innocent people and to make Kashmir a wonderful place once again. Thank you so much. Thanks a lot, Sudhakar Sharma ji. The person who are behind the curtain, they are playing the game to, they are not in a position to diagnose that, they are not going to digest it, that the peace harmony is coming in Kashmir Valley. That's why just they want to break this peace and they want to make another thing. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ బిహైండ్ ద కర్టెన్ వాట్ దే హ్యావ్ ప్లేడ్. ఇది మనం చూసాం. ఈ రోజు ఏదైతే ఉన్నదో మనకు సంబంధించిన జమ్మూ కాశ్మీర్కు సంబంధించిన ఎవరైతే మాట్లాడారో, ఎవరైతే ఉగ్రవాదులు టెర్రరిస్టులుగా చెప్తారో వారికి మతాలకు కులాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కేవలం వారైతే రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసిన భాగంగానే ముస్లిమ్స్లకు హిందువుల మధ్యనే ఈ విభేదాలు సృష్టించడానికి, ఒక అనావృష్టి సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేసిన భాగంలోనే. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వచ్చే నెలలలో అంటే 2-3 నెలల్లోనే అమర్నాథ్ యాత్ర మొదలవుతున్నది. ఈ అమర్నాథ్ యాత్రకు సంబంధించింది కూడా ఒక పవర్ఫుల్గా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలన్నట్టుగానే వాళ్ళు ఉగ్రవాద దాడి జరిపారు. దీనికి సంబంధించింది ఎవరు కారకులు, ఎవరు వాళ్లకు సహాయపడ్డారో, ఎవరు వాళ్లకు అక్కడ సపోర్ట్ ఇచ్చారో వారందరినీ గుర్తించి వారిని కూడా అదే ప్లేస్లో తీసుకొచ్చి అదే సమయంలో అక్కడనే వారికి ఉరిశిక్ష విధించాలని, వారిని కూడా అలాగే మరణ దండన విధించాలని వారు ఎక్కడైతే కోరుతున్నారు. దానికి కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఎవరైతే మన పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో అక్కడ కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం అనేది చూస్తున్నాము జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక వాతావరణం, శాంతియుత వాతావరణం నెలకొన్నది. ఇంతకుముందు గతంలాగా ఎప్పుడైతే 90లో మనం వెళ్తామో 80-90లలో అప్పుడు చూసేది ప్రతి చోట అడుగడుగున అక్కడ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ కానీ ఇంకా ఇతరతర శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ అక్కడ ఆటంకాలు కలిగించేది. కానీ ఈరోజు ఆ వాతావరణం లేదు. ఎక్కడంటే అక్కడ మంచిగా నిర్మానుష్యంగా బ్రహ్మాండంగా సురక్షితంగా వెళ్ళవచ్చు అనే ఒక ధీమా ఎప్పుడైతే టూరిస్టులలో వచ్చిరో అనేక మంది అక్కడికి కశ్మీర్ బాటపట్టారు. కానీ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డ ఈ కశ్మీర్ వ్యాలీ సంఘటన ఈరోజు ఈ టూరిజానికి సంబంధించిన పెద్ద దెబ్బ అనే పెట్టవచ్చు. కాకపోతే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి, వారికి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారనేది మాత్రం బహిర్గత సత్యం, ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన సత్యం. కానీ దీని మీద సరైన పద్ధతిలో భారతదేశంలో కేంద్రం ఉన్న ప్రభుత్వం ఎలా దీన్ని స్పందిస్తారో, దానికి ఎలా వాళ్ళను కౌంటర్ ఇస్తారో అది వేచి చూడవలసి ఉన్నది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీని వెనకాల ఎవరున్నారో అనే కారకులైన వారిని ఖచ్చితంగా గుర్తించవలసి ఉన్నది. అది సెక్యూరిటీ ల్యాప్సెసే కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన ఫోర్సెస్కు సంబంధించింది, మనకు సంబంధించిన ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ సపోర్ట్ చేశారో వారి మీద నిఘా ఖచ్చితంగా పెట్టవలసిందే. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నది ఒక కేవలం మన భారతదేశం కేవలం కాశ్మీర్కే కాదు, అది యావత్తు భారతదేశం మీదనే దాడిగానే మనం గుర్తించవచ్చు. ఈ విషయంలో మనం అది దానికి సంబంధించిన ఏదైతే దాడి జరిగిందో అది కేవలం కాశ్మీర్ వ్యాలీ మీద కాదు, మొత్తం యావత్తు భారతదేశం మీదనే అటాక్ జరిగింది. దాన్ని గుర్తించి దానికి సరైన పద్ధతిలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారికి జవాబిస్తారని భావిస్తూ ఇంకొక విషయంతో మనం రేపు ఈరోజు మనకు ఏదైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో రాకేష్ కుమార్ గారికి, అలాగే ఆర్సి శర్మ గారికి, సయీద్ మొహమ్మద్ అస్లం గారికి, అలాగే హరుణ్ రిషి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాము. మరొకసారి ఇంకొక విషయంతో మీ ముందుకు వస్తాం. అప్పటిదాకా చూస్తుండండి 4 Sides TV.